Welcome SVPites to presentation on chapter number 3, the T's, and this is part 1 of our presentation. So students, this poem T's is a very simple poem written by, who's the writer of this poem? This poem is written by Lillian Holmes, right? And she was born in Britain, and later on she migrated to another country named New Zealand. Okay, so students, our chapter number 3, the T's, where the wind is naughty, Naughty. So as the name suggests, this poem is about wind and how the wind is being naughty. विंड जो है किस तरीके से नॉटी हो रही है और किस तरीके से जो विंड है वो जो राइटर है उसको टीज कर रही है. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीज? TEA. सो बेसिकली दिस पोम is about how wind is teasing the writer, but more than that there is a message. And what is that? That we should take the changes in our life lightly, okay, and we should accept them. जो हमारी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना उसको हमें लाइटली लेना चाहिए, उसको लेके हमें परेशान नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड टेक देम इन अ पॉजिटिव वे, राइट? एंड वी शुड नॉट गिव अप. कभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, राइट? सो व्हाट हैपन्स इन दिस पोम, students, that the writer is complaining that wind is a nuisance. Why nuisance? Because wind is teasing the writer so much, which is not fair. Okay, so wind is annoying or troubling या चिढ़ा रही है wind writer को, which is not fair, and राइटर को लगता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है. एंड हाउ विंड इज टीजिंग? सो समटाइम्स द विंड इज पाउंसिंग ऑन द राइटर फ्रॉम एवरीवेयर. नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउंस? पाउंस मीन्स जंप. सो दैट मीन्स द राइटर इज सेइंग that the wind is jumping on me from everywhere, okay, because wind is everywhere, right? And seize my hat. Seize means to snatch, छीन लेना. So writer is saying that you are snatching my hat. आप मेरी hat भी जो है मुझसे छीन रहे हो, because wind is very powerful, no? And clutch my hair, and you are also holding tightly my hair. So you feel when there is a strong wind, your hairs are also like flying in the air, right? And it feels like someone is clutching your hair, someone is holding your hair very tightly. जब विंड बहुत ज़ोर से चलती है तो आपको ऐसा लगता नहीं किसी ने आपके बाल पकड़ लिए हैं, इतना पावरफुल, राइट? सो दैट इज़ व्हाट द राइटर इज कंप्लेनिंग, दैट यू सीज माई हैट एंड यू क्लच माई हेयर एंड टाई माई क्लॉथ्स इन नॉट्स, ओके, एंड यू टाई माई क्लॉथ्स, मेरे जो कपड़े हैं उनको आप बांध देते हो कि उसमें इन नॉट्स, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, ओके. लाइक सपोज इफ यू पुट क्लॉथ्स टू ड्राई एंड इफ इट इज़ विंडी, then those cloths, you know, they have knots, उसमें गांठें पड़ जाती है in those clothes, okay. And tear, and not only that, you tear my clothes, जो मेरे कपड़े उनको आप फाड़ भी देते हो, okay. The leaves and blossoms from the pear, okay. So what you do, you tear the leaves and blossom from the pear. जो pear है उसकी जो leaves और blossom है उनको आप टेयर भी कर रहे हो, फाड़ भी रहे हो, ओके. आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर. सो नाउ द राइटर इज सेइंग आई विश, कि काश आई कुड सेट अ स्नेयर. नाउ व्हाट इज अ स्नेयर? स्नेयर मीन्स ट्रैप, कि मैं आपके लिए कोई जाल बिछा पाता. आई कुड सेट अ स्नेयर और ट्रैप फॉर यू टू कैच यू, सो दैट आई कुड कैच यू. अब यहाँ पे राइटर किसको कैच करने की बात कर रहा है? Writer wants to trap the wind. Why? Because wind is teasing the writer in
different ways, by pouncing on the writer, by seizing writer's hat, by clutching writer's hair and tying writer's cloth in knots, right? So that is why the writer says that I wish I could set a snare or trap to catch you, but I won't dare. But मैं ऐसा करने से डरता हूँ, ओके. बट आई वोंट डेयर मतलब मैं ऐसा करने से डरता हूँ. वाई? फॉर दो यू टीज मी, सो इवन दो यू टीज मी, हालांकि आप मुझे टीज करते हो, आप मुझे चिढ़ाते हो, बट ओ विंड इफ यू वर नॉट देयर. सो इवन दो यू टीज मी, बट ओ विंड इफ यू वर नॉट देयर, दैट मीन्स अगर आप नहीं होती विंड, आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट. तो मुझे नहीं लगता आई कुड मैनेज क्वाइट कि मैं मैनेज कर पाता टू सेल माई बोट, मेरी जो बोट है उसको सेल करना, पानी में चलाना, और फ्लाई माई काइट, और इवन आई कुडंट हैव, I won't be able to fly my kite in the sky if the wind was not there. So बच्चों, आप ये जो सेल बोट है या जो फ्लाई काइट है, ये कब होती है? ओनली व्हेन देयर इज अ विंड. सो दैट मीन्स इवन दो द राइटर is being teased, the wind is teasing the writer in different ways, but still the writer doesn't want to trap the wind and catch the wind, because the wind is also helping the writer to sail the boat and fly the kite. So what is the message in this poem? That we should take things lightly. Okay, we should accept light things, small things, and we should not give up. और हमें हार नहीं माननी चाहिए. Give up means हार मानना, right? So now you look at this picture. This is a girl, and her hat is being seized by the wind. So wind is seizing her hat, right? And you look at the hair as if someone is clutching her hair. So wind is clutching her hair also, and tying her clothes in knots. इसके जो कपड़े हैं उनको उनमें गांठें पड़ गई है because of the wind, right? But at the same time, the wind is also helping this girl to fly the kite, right? So if no wind, then she cannot fly the kite, right? That is why she doesn't want to catch the wind. So now let's start with our chapter. Chapter number 3, the tease, where the wind is naughty. Okay, where मतलब जहाँ पे the wind is naughty, N-A-U-G-H-T-Y, जहाँ पे wind जो है वो कैसी है? naughty है. So have you ever been teased by someone, or have you teased anyone? So that means क्या कभी किसी ने आपको टीज किया है? someone मतलब किसी ने. और have you teased anyone, या आपने किसी को टीज किया है? anyone मतलब किसी को. and how did it make you feel? so this tease जो है उसने आपको कैसा फील कराया, right? now the next one, what can you do to deal with people who like to tease? so आप बेसिकली उन लोगों के साथ में कैसे डील कर सकते हैं who like to tease. okay, डील करना मतलब हैंडल करना. so there can be different ways. one of the way is to take them lightly. आप उनको बहुत lightly लीजिए and sort of ignore them. आप अगर उनको इग्नोर करेंगे, if you take them lightly, then what will happen? the person who's teasing you, जो पर्सन आपको टीज कर रहा है, he will think that even I'm teasing him, but he or she is not responding. So then the person will lose interest in teasing you, right? So that can be one way. Now just imagine a windy day in a forest. Describe and draw the scene. So here you can
enjoy that as well as you can be scared. Number one, you are in a forest. तो फॉरेस्ट के नाम से लोगों को क्या है, दे गेट स्केर्ड, उनको डर लगता है, राइट. एंड देन अ विंडी डे, जिस दिन बहुत ज़्यादा विंड चल रही है. ओके, सो you can describe, maybe you enjoyed it, maybe you were afraid, you got scared. So whatever your feelings are, just describe it and also draw. You can draw a scene where you are standing in the middle of a forest. आप जंगल के बीच में जो है खड़े हैं, and it's a windy day and all the leaves are sort of making sound like that, right? Now we already know about the writer of this poem, Lillian Holmes, right? And the larger meaning of the poem, in short, is to take any kind of change lightly and not give up. So basically इस पोम से हमें जो एक मैसेज मिलता है, या जो इस पोम का एक लार्जर मीनिंग है, व्हाट इज दैट? टू टेक एनी काइंड ऑफ चेंज लाइटली. आपकी लाइफ में कोई भी चेंज अगर आता है, कोई भी परिवर्तन आता है, ओके, सो यू टेक इट लाइटली. उसको लेके आप सीरियस ना हो, उसको लेके जो है यू डोंट गेट वरीड, यू डोंट गेट अनॉयड एंड डोंट गिव अप. और आप जो है गिव अप ना करें, किसी चीज़ को छोड़े नहीं, राइट. सो इन दिस पोम what happens, what is the message? That you take the change lightly, any kind of change lightly, that the person or the child in this poem, उसको जो है विंड टीज कर रही है, राइट. कभी उसकी जो है हेड जो है उसको छीन रही है, कभी उसके जो हेयर है उनको जो है स्नैच कर रही है, लाइक दैट. सो दीज आर द चेंजेस, ओके. सो उन चेंजेस को जो है you should not get annoyed, but you should take those changes lightly in this poem's context, right? बच्चों, in this poem there's a word used, pounce, Pounce. What is the spelling of that word? Pounce. So the pounce का meaning is basically to jump suddenly, किसी चीज पे एकदम से jump करना या झपट्टा मारना. So let us see the actual meaning of pounce. Like this cat, how she pounces on a rat, right? Excellent. So now you know the meaning of the word pounce. Pounce. Pounce means to jump suddenly. The way this cat pounced, right? And then there is one more word, sailboat. Sailboat. So students, if you see, these are boats, okay? ये जो ocean है, in that ocean you can see these boats, but these boats are basically propelled by or driven by wind. ये जो है सेल बोलते हैं इनको. ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये कपड़े के बने होते हैं, फैब्रिक के, and with the help of wind these boats they can move in water, and these sort of boats are called sailboat. Sailboat, right? Now let's start with the poem. You are a nuisance, I declare. So what is this word? Nuisance. Nuisance. Nuisance means someone or something that creates problem. Okay, कोई ऐसी चीज जो
प्रॉब्लम क्रिएट करती जाए, ओके, कोई बाधा या जो है कोई परेशानी या फिर रुकावट। सो यू आर अ न्यूसेंस आई डिक्लेयर। सो यहाँ पे यू किसके लिए आया है? यू इज बेसिकली फॉर wind, WIND, okay? So you look at this picture, this girl and this boy, they are getting teased by wind. ये दोनों जो हैं boy and girl, इनको कौन टीज कर रहा है, इनको कौन परेशान कर रहा है? wind. So this girl and this boy, they are saying to wind, ये wind के लिए क्या कह रहे हैं? You are a nuisance, I declare. That means, wind, you are someone who is creating problems. I declare. That is what I am telling. You tease me, so it isn't fair. यहाँ पे you किसके लिए है? Again for the wind. Okay? So the girl is saying, you tease me, so it isn't fair. इट इज़ नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है। फेयर होना मतलब टू बी करेक्ट। सो इट इज़ नॉट फेयर दैट यू टीज मी, यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर। अब बच्चों, जो विंड है, विंड हर तरफ से चलती है व्हेन इट इज़ विंडी, राइट? सो दैट मीन्स यू पाउंस ऑन मी, यू जंप ऑन मी। नाउ you know what is the meaning of pounce? We saw how the cat was pouncing, right? So again, here you is basically for wind. So you pounce on me. That means you jump on me from everywhere. EVERYWHERE. Everywhere means हर तरफ से. And seize, SEIZE. And seize my hat. So what is the meaning of seize? Seize is snatch, छीन लेना, okay? So you seize my hat and clutch my hair. So now you look at this picture. This girl is wearing a hat and the wind is basically seizing the hat. So snatching the hat मतलब छीन रही है, उसकी जो हैट है उसको विंड छीन रही है, स्नैच कर रही है, सीज कर रही है। एंड क्लच माई हेयर, एंड यू सी हर हेयर, इनको विंड ऐसे लग रहा है जैसे, क्लच मीन्स टू होल्ड टाइटली, किसी चीज को जोर से पकड़ के रखना। तो यू सी द हेयर्स, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड इट इज एज इफ, मानो कि कोई इस गर्ल के जो हेयर है उनको होल्ड टाइटली कर रहा है, राइट? कस के जो है पकड़ रखे हैं उसके बाल, उस तरीके से उसे फीलिंग आ रही है। सो क्लच मीन्स टू होल्ड टाइटली, ओके? सो and seize my hat and clutch my hair, right? And tie my clothes in knots and tear, okay? और बाकी आप क्या कर रहे हो, जो मेरे क्लॉथ्स हैं उनको आपने नॉट्स में, मतलब उनमें गांठें बांध दी है, एंड टेयर, और उनको आप टेयर कर रहे हो, फाड़ रहे हो, ओके? एंड टेयर द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर, और आप क्या कर रहे हो, जो लीव्स और जो ब्लॉसम है, दैट मीन्स जो पत्तियां एंड जो ब्लॉसम है, जो उनको आप क्या कर रहे हो, उनको टेयर कर रहे हो, आप उनको तोड़ रहे हो, फाड़ रहे हो, ओके? आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर. सो आई विश मीन्स मैं चाहती हूं, ओके? आई प्रे, ओके? सो आई विश मतलब मैं चाहती हूं, दैट आई कुड सेट अ स्नेयर, मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए एक स्नेयर, ओके? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेयर? स्नेयर मीन्स ट्रैप, जाल बिछाना, ओके? सो आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर. सो आई विश मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ दैट आई कुड सेट अ स्नेयर, दैट आई कुड सेट अ ट्रैप, आपके लिए जो है मैं एक जाल बिछा दूँ जिसमें आप फंस जाओ, ओके? सो आई सेट अ स्नेयर वेयर यू गेट ट्रैप्ड, ओके? सो ये जो गर्ल है वो किसके लिए स्नेयर लगाने की बात कर रही है? फॉर द विंड. एंड वाई? बिकॉज विंड इज टीजिंग द गर्ल, ओके?
विंड किस तरीके से टीज कर रही है? बाय पाउंसिंग ऑन हर फ्रॉम एवरीवेयर एंड सीजिंग द हैट एंड क्लच द हेयर, राइट? सो आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर टू कैच यू. तो ये जो ट्रैप है वो किसके लिए लगा दूं? टू कैच यू, आपको पकड़ने के लिए. CATCH, कैच. बट आई वोंट डेयर. ओके, सो इवन दो आई वॉन्ट टू सेट अ ट्रैप फॉर यू टू कैच यू, ओके, हालांकि मैं जो है एक ट्रैप जो है आपके लिए लगाना चाहती हूं टू कैच यू, आपको पकड़ने के लिए. बट आई वोंट डेयर, बट ऐसा मैं करने की हिम्मत नहीं करूंगी. डेयर मीन्स हिम्मत जुटाना. सो बट आई वोंट डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत, बट ऐसा करने की मैं हिम्मत नहीं करूंगी. वाई? बिकॉज फॉर दो यू टीज मी आई डिक्लेयर. हालांकि, दो मीन्स हालांकि. ओके, सो इवन दो यू टीज मी, तो हालांकि आप मुझे टीज करते हो, आई डिक्लेयर, जो मैं बता रही हूं, ओके, आई एम टेलिंग यू दैट यू टीज मी. ओ विंड इफ यू वर नेवर देयर. सो इवन दो यू टीज मी आई डिक्लेयर, दैट मीन्स हालांकि मैं बता रही हूं कि आप जो है यू टीज मी, आप मुझे टीज करते हो, परेशान करते हो. ओ विंड इफ यू वर नेवर देयर. सो ओ विंड इफ यू वर नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं. इफ यू वर नेवर देयर मतलब अगर आप यहां पे नहीं होते. इफ विंड यू वर नेवर देयर, इफ यू वर नॉट देयर, अगर आप नहीं होते. आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट. ओके, सो अगर आप नहीं होते तो आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट, तो मुझे नहीं लगता. आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता. आई कुड मैनेज, मैं मैनेज कर पाती क्वाइट, आराम से. ओके, वाई? टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट. ओके, सो ओ विंड इफ यू आर नेवर देयर. सो विंड इफ यू आर नॉट देयर, अगर आप नहीं होती. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता. आई कुड मैनेज क्वाइट, कि मैं मैनेज कर पाती किस चीज को? टू सेल माई बोट. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज सेल बोट. आई ऑलरेडी शोड यू पिक्चर. टू सेल माई बोट, मेरी बोट को सेल करने के लिए. और फ्लाई माई काइट, या फिर मेरी काइट को फ्लाई करने के लिए. यू नो, टू सेल द बोट और टू फ्लाई योर काइट, व्हाट डू यू नीड? आपको किस चीज की जरूरत होती है? विंड, राइट? सो दैट इज वाई द गर्ल इज सेइंग that even though you tease me and I wish that I could set a snare for you, but I won't dare, but ऐसा करने की मैं हिम्मत नहीं करूंगी. because you sail my boat and fly my kite. now you see this girl, इसको जो है विंड के कारण परेशानी हो रही है. शी इज गेटिंग टीज्ड बिकॉज इसकी जो हैट है वो विंड सीज कर रही है. एंड हर हेयर ऑल्सो, विंड इज clutching her hair. But at the same time, this girl, you know what is she doing? She is flying the kite. And what does she need? She need the wind. उसके लिए उसको wind की ज़रूरत है. तो इसीलिए जो है, जो राइटर उसने क्या बोला है, क्या मैसेज इसमें दिया है इस पोम में? टू टेक थिंग्स लाइटली, चीज़ों को जो है लाइटली लो. एंड डोंट गेट अनॉयड, आप जो है गिव अप मत करो. ओके, अगर ये गर्ल जो है गिव अप कर जाती तो क्या होता? वो जो काइट फ्लाई कर रही है ना, वो एंजॉय नहीं कर पाती. राइट? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोम. नाउ लेट्स गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स. न्यूसेंस, NUISANCE. न्यूसेंस मीन्स समथिंग और समवन दैट कॉजेज प्रॉब्लम. समथिंग मतलब या तो कोई चीज, और समवन और सम पर्सन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेंस. देन डिक्लेयर. डिक्लेयर मीन्स टू स्पीक आउट लाउडली. ओके, जोर से जो है बोलना इज कॉल्ड डिक्लेयर. देन पाउंस, यू नो व्हाट इज पाउंस? जंप सडनली. देन सीज. सीज मीन्स टू स्नैच, किसी चीज को छीन लेना. देन क्लच, CLUTCH. क्लच मीन्स होल्ड टाइटली, किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखना, दैट इज कॉल्ड क्लच. देन द नेक्स्ट वन, स्नेयर. स्नेयर मीन्स ट्रैप. ओके, जाल. Now, what is the difference between a breeze, a wind, and gale? Okay. So, do you know what is the difference? A moving air
इज कॉल्ड विंड. जब एयर चल रही होती है, हवा चल रही होती है, मूव कर रही होती है, सो दैट इज कॉल्ड विंड. एंड व्हाट इज ब्रीज? BREEZE, BREEZE, ब्रीज. ब्रीज होता है व्हेन द विंड इज वेरी लाइट, जब बहुत हल्की हवा चलती है जिससे सिर्फ पेड़ की जो टहनियाँ है ना, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर मूविंग. ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. तो ब्रीज क्या होती है? वेरी लाइट एयर व्हेन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर मूविंग, जब ट्री की जो ब्रांचेस है वो मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, तो उस हवा चलने को तो हम बोलते हैं ब्रीज. BREEZE. ओके. एंड व्हाट इज गेल? GALE, गेल. गेल होती है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा जोर से हवा चलती है जिससे पेड़ उखड़ जाते हैं. द ट्रीज आर अपरूटेड. ओके, पेड़ उखड़ जाते हैं, जो लाइट के पोल्स हैं वो उखड़ जाते हैं. सो दैट wind is called gale, GALE, when the trees are uprooted. Uprooted मतलब उखड़ जाना. Okay, so now you know what is the wind, what is breeze and what is gale. Moving air is wind, and when the wind is very light and the branches of the trees are moving, that is called breeze. And when very strong wind and trees are uprooted, that is called gale. Clear? Now we have completed the chapter and let's go through the question answers. A1. Choose the correct answer to complete the given sentences. So what you have to do? You have to choose the correct answer. Okay? आपको correct answer choose करना है to complete the given sentences. Given sentences को complete करने के लिए. There may be more than one correct answer. And what can happen? There can be more than one. एक से ज़्यादा जो है correct answer हो सकते हैं. Right? So number 1, in the poem the speaker finds the wind. So in the poem मतलब poem में the speaker, okay, जो narrate कर रहा है story या poem, that is called speaker. So the speaker finds the wind. Option A, a friend. Option B, a nuisance. Option C, a trap. Or option D, an enemy. So the correct option is you are such a nuisance. Okay, option B. ट्रबल मेकर जो है वो स्पीकर विंड को मान रहा है. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन. द स्पीकर फाइंड्स द विंड अ टीज बिकॉज, जो स्पीकर है वो फाइंड करता है या उसे लगता है द विंड अ टीज, जो विंड है वो एक टीज लगती है, परेशान करने वाली लगती है. बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज. सो कैन यू टेल वाई? Option A, it jumps on her. B, it snatches her hat and ties her clothes in knots. Option C, it clutches her hair. Or option D, it tears the leaves and blossoms from the pear. तो आपको क्या लगता है? You have gone through the poem. Now you tell why the speaker find the wind a tease. Option A, it jumps on her. It pounces on her. That's correct, right? So this is correct. Then it snatches her hat and ties her cloth in knots. उसकी जो hat है उसको snatch कर लेता है. Okay? Okay? So उसकी जो hat है उसको seize कर लेता है या snatch कर लेता है, छीन लेता है. And ties her cloths in knots. और उसके जो कपड़े हैं उनको knots में बांध लेता है, उनमें गांठें पड़ जाती है. So this is also correct, right? B is also correct. Number C, it clutches her hair. So the wind holds her hair tightly, correct? This is also correct. Number D, it tears the leaves and blossoms from the pear. ये जो wind है वो tear करती है, तोड़ देती है किसको? Leaves और blossoms को, okay, पत्तियों को और फूलों को from the pear, right? So this is also correct. So all options are correct in question number 2. Clear? Now number 3. The speaker wants to dash the wind. Option A, trap. Option B, throw away. Option C, tie up. And option D, none. So speaker क्या करना चाह रहा है? विंड को ट्रैप करना चाह रहा है, राइट? Snare. She want to set a snare. Okay. So what is the correct answer? A, trap करना या snare करना. Okay. So speaker क्या करना चाह रहा है? To trap the wind. विंड को ट्रैप करना, पकड़ना. Okay. Now number 4.
द विंड हेल्प्स द स्पीकर टू, जो विंड है वो हेल्प करती है स्पीकर की टू, ऑप्शन ए ड्राई द क्लॉथ्स, ऑप्शन बी फील कूल एंड फ्रेश, ऑप्शन सी फ्लाई हर काइट एंड सेल हर बोट, ऑप्शन डी स्टे एट होम. सो इवन दो ऑप्शन ए ड्राई हर क्लॉथ्स, बात सही है, विंड जो है वो क्लॉथ्स को ड्राई करती है एंड विंड ऑल्सो मेक्स अस कूल एंड फ्रेश, उससे हम कूल और फ्रेश भी फील करते हैं. बट इस पोम में क्या करती है विंड स्पीकर के लिए? दैट द करेक्ट आंसर इज फ्लाई हर काइट एंड सेल हर बोट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? So with this we stop here. You please go through the poem, learn all the difficult words and go through the question answers. Thank you.